Good afternoon, students. So now further in this chapter we are going to study about the packaging of DNA. So how the DNA is going to packed in the nuclei. Packaging of DNA molecule. So we have already studied that DNA molecule is very large in size. जो एक सिंगल जीनोम होता है उसका साइज अराउंड 2.2 मीटर होता है and the size of nuclei is too small, microscopic. So how can it possible to pack this large amount of genome into the nuclei? किस तरह से ये पैक होता है? तो ये हमें समझना है और इसे समझने के लिए हमें क्या समझना होगा पहले? What is the structure of nucleosome? Because nucleosome is the unit of DNA. ऐसा माना जाता है so many nucleosome combine together and form the DNA strand. So when we discuss about the nucleosome is made up of two things. The first thing is the histone protein and the second thing is DNA strand. DNA strand. So histone protein as well as DNA strand both combine together and form the unit of DNA, that is the nucleosome. So when we are talking about the histone protein, there are four type of histone proteins found that form the octamer structure of histone protein. तो octamer structure बनाते हैं, फोर काइंड की histone protein होती है. कौन कौन सी होती है आपकी? H2A, H2B, H3 and H4. So these are the four category of histone protein that combine together and form the octamer structure, and each histone protein are 2 in number. So octa means 8 units, so these 8 histone protein combine together and form the octamer unit, and DNA strand remain wrapped to this octamer structure. DNA strand इसको wrap किए हुए रहता है. किस तरह से? I am going to draw a diagram. Suppose these are the histone proteins. It is H2A, H2B, H3 and H4. So one histone protein you can say at the front side of H2A, but there are two molecules of it and one remain at the back side H2A. In the same way H2B also one remain at the back side, H4 also one remain at the back side, and H3 also one remain at the back side. So these 8 proteins combine together and form the structure that is known as the octamer structure. Now what happened? The DNA strand is going to wrap around this octamer like this. So it is the DNA strand that is going to wrap this octamer protein like this. One more thing, these proteins are rich in arginine and it is positively charged amino acid. So the histone proteins are positively charged and the DNA strand are negatively charged due to the presence of phosphate group on DNA. So here positive and negative both attract to each other. That is the reason only the DNA strand is attracted by this histone octamer structure, and you get this kind of structure, and this whole structure is known as the nucleosome. Now nucleosome consists of two type of DNA. एक DNA तो जो आपके octamer के ऊपर wrap condition में है उसको हम बोल देते हैं core DNA. That consists of around 147 base pairs. तो ये तो core DNA हो गया, और ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है जो आपका कवर किए हुए नहीं है इसको हम बोल देते हैं linker DNA. That DNA is known as the linker DNA. So there are two kind of DNA found, core DNA that surrounded the histone protein, and another one that is found at the end of the DNA strand that are known as the linker DNA. तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ये पूरा क्या है? न्यूक्लियोसोम है.
इस तरह से जो हिस्टोन प्रोटीन्स है ये आपस में डीएनए को कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखती हैं, एक तरह से लिंक करके रखती है, जिससे कि वो थोड़ी सी जगह में आपका डीएनए क्या है कोइल्ड फॉर्म में आपके पैक हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर। सो देयर इज वन मोर हिस्टोन प्रोटीन फाउंड एट द अपर साइड ऑफ इट, जो इस डीएनए को इससे रैप होने में हेल्पफुल करती है, जिसको हम H1 हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। बट H1 हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस ऑक्टामर का पार्ट नहीं है, वो अलग से इसको बाइंड करने के लिए हेल्पफुल होती है H1 हिस्टोन प्रोटीन, एंड दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑक्टामर। तो इस तरह से न्यूक्लियोसोम, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम कंबाइंड होकर पूरे डीएनए स्ट्रैंड को क्या करते हैं, छोटी सी जगह में पैक कर देते हैं, एंड इट विल फिट इन द न्यूक्लियर। Now beside histone protein there are few other proteins also found that are known as non-histone proteins. आपके डीएनए के स्ट्रैंड में कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन that are also helpful in the binding of DNA into a small area. तो हिस्टोन प्रोटीन को छोड़ के कुछ प्रोटीन्स also present in nucleosome that are known as the non-histone protein, जो हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है बट दे आर हेल्पफुल इन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस। यहीं पे मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ बेटा, वैसे यूक्रोमेटिन है और वी विल डिस्कस दैट लेटर, यहाँ नहीं बता रही हूँ। तो ये क्या है हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए, हाउ द डीएनए इज गोइंग टू पैक इनटू द न्यूक्लियाई। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, डीएनए कॉइल्ड फॉर्म में आपके कन्वर्ट कर देते हैं, और वो कॉइल्ड फॉर्म थोड़ी सी जगह में फिट होने के लिए प्रिपेयर हो जाती है। सो आफ्टर पैकेजिंग ऑफ डीएनए नाउ द क्वेश्चन विल अराइज ये कि हम डीएनए की इतनी ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा डीएनए वाकई में जेनेटिक मटेरियल है भी या नहीं है। तो उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया गया था जो ग्रिफ्थ ने किया था। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो व्हाट इज़ द मेन मोटो ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं क्या वाकई में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। उसको प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको हम ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिस्ट थे ग्रिफ्थ, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले देखते हैं इन्होंने किस किस चीज़ को इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था, व्हाट आर द मटेरियल दैट दे हैव यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक इसमें सबसे पहले बैक्टीरिया जो यूज़ किया था वो था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। He has taken the bacteria Streptococcus pneumoniae, और Streptococcus pneumoniae जो बैक्टीरिया लिया था इन्होंने, इसकी 2 स्ट्रैंड्स ली थी, 2 स्ट्रैंड ली थी। एक स्ट्रैंड था जिसको स्मूथ Streptococcus pneumoniae कहा गया, Streptococcus pneumoniae। दूसरा स्ट्रैंड था जो लिया इन्होंने रफ Streptococcus pneumoniae। अब इसकी भी डिफरेंट स्ट्रैंड लिया था, जैसे कि एसिस को दिखाया S1, S2, S3। इसी तरह से इसकी भी डिफरेंट स्ट्रैंड होती हैं R1, R2, R3। और ये रफ और स्मूथ क्यों कहलाते हैं, ये बैक्टीरिया तो सेम ही है लेकिन इसकी 2 स्पीशीज़। स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई जो होता है इसकी बॉडी कवर रहता है एक स्मूथ, आप कह सकते हैं मेम्ब्रेन से, कैप्सूल से। सो इफ़ द बॉडी इज कवर्ड बाय द कैप्सूल तो उसको हमने बोल दिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, और अगर बॉडी कैप्सूल से कवर नहीं है तो उसको हमने क्या बोल दिया, रफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। इसके अलावा इन्होंने और क्या लिया, माइस लिया, माइस को यूज़ किया था। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई की जो इन्होंने स्ट्रैंड लिया था स्टडी करने के लिए वो स्मूथ की तो इन्होंने लिया था S3 स्ट्रैंड, और रफ की ली थी R2 स्ट्रैंड। तो ग्रिफ्थ ने क्या किया, स्मूथ वाली स्पीशीज़ की S3 स्ट्रैंड लिया और रफ वाली की क्या ली, R2 स्ट्रैंड लिया। अब इन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई को इंसर्ट करना शुरू किया माइस में, क्योंकि ये वो बैक्टीरिया जो निमोनिया कोज करता है। तो अब इनको
क्या रिजल्ट मिले? सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो R2 स्ट्रैंड था बैक्टीरिया का उसको इंसर्ट किया माइस के अंदर, और ये कैसा है भी लाइव है, जिंदा स्ट्रैंड को माइस के अंदर जब इंसर्ट किया तो इन्होंने देखा कि माइस सरवाइव कर जाता है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, माइस सरवाइव, नो इफेक्ट ऑन माइस। सेकेंड केस में इन्होंने क्या किया, इट इज द फर्स्ट केस, सेकेंड केस में फिर इन्होंने S3 स्ट्रेन लिया, उसको इंसर्ट किया माइस में, तो माइस क्या होता है, डाइड हो जाता है, माइस मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। फिर इन्होंने क्या किया, थर्ड टाइम ये जो S3 स्ट्रेन है जो उन्होंने लाइव लिया था, इसको हीट कर लिया, हीट से पहले बैक्टीरिया को किल कर दिया, हीट किल्ड S3 स्ट्रेन लिया फिर उन्होंने, फिर इसको माइस में जब इंसर्ट किया, देन ही सॉ दैट नाउ माइस अगेन सर्वाइव, माइस को कुछ नहीं होता, वो फिर से सर्वाइव कर गया। तो फिर से देखिए इन्होंने क्या पॉसिबिलिटी ली, पहले केस में इन्होंने R2 स्ट्रैंड लिया, रफ वाला स्ट्रैंड लिया, माइस में इंसर्ट किया, माइस सर्वाइव कर गया। सेकेंड टाइम इन्होंने स्मूथ वाला स्ट्रैंड लिया, जब उसको माइस में इंसर्ट किया, माइस की डेथ हो गई। थर्ड टाइम में इन्होंने क्या किया, S3 स्ट्रेन को, इस वाले स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को किल किया, और किल करने के बाद माइस में जब इंसर्ट किया तो इन्होंने देखा माइस फिर से क्या करता है, सर्वाइव कर जाता है। फिर लास्ट केस इन्होंने क्या किया, लास्ट केस में इन्होंने देखा कि इन दोनों केसेस में माइस सर्वाइव कर रहा है, यहाँ पे भी सर्वाइव कर रहा है, यहाँ पे भी सर्वाइव कर रहा है, इन दोनों को कंबाइनली लिया फोर्थ केस में। फोर्थ केस में इन्होंने क्या किया, R2 लाइव लिया और S3 कैसा लिया, हीट किल्ड बैक्टीरिया। जब इसको इन्होंने माइस में इंसर्ट किया तो क्या होता है, माइस की डेथ हो जाती है, माइस डाइड हो जाता है। तो इन्होंने देखा कि जब इनको इंडिविजुअल डाला गया माइस में तब तो वो सर्वाइव कर रहा था, लेकिन दोनों को कंबाइन करके जब माइस में डाला तो माइस का क्या हो गया, डेथ हो गई। सो व्हाट इट मीन, देयर इज सम फैक्टर दैट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू द S3, जो डाइड है बैक्टीरिया उसमें कुछ फैक्टर इस लाइव R2 से ट्रांसफॉर्म हो रहा है और जो इसको लिविंग बना रहा है। और जब S3 लिविंग कंडीशन में था तो माइस की क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी, दैट कॉज द डेथ ऑफ द माइस। तो ग्रिफ्थ ने ये तो बता दिया देयर इज एनी फैक्टर जो हीट किल्ड बैक्टीरिया को सर्वाइव में हेल्पफुल कर रहा है, उसको फिर से क्या कर रहा है, लाइव कर रहा है, और जिससे कि माइस किल हो रहा है, लेकिन वो क्या फैक्टर था उसके बारे में ग्रिफ्थ ने कुछ भी नहीं बताया। पर इनके एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दिया जाता है बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड वेयर इट हैज़ बीन प्रूव दैट द DNA इज द जेनेटिक मटेरियल और नॉट। आफ्टर 16 years ऑफ हिज दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के 16 साल बाद 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर से इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया, कंटिन्यू किया। तो हु वर दोज साइंटिस्ट, so the name of those 3 scientists were Avery, McLeod and McCarthy. So these were the scientists after 16 years who again did the experiment of the Griffith. But what they have did, वहाँ तक तो प्रूफ हो ही गया था, ग्रिफ्थ ने बताया था कि अगर वो R2 प्लस S3 जो कैसी है, डाइड है, और ये क्या है, लाइव है, इन दोनों को एक साथ अगर माइस में इंसर्ट कर रहे थे तो माइस की क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी, वो डाई हो रहा था। तो इनको ये प्रूव करना था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है R2 से जो फैक्टर S3 में गया है एग्जैक्टली वो क्या है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स को यूज़ किया, इस माइस में स्पेसिफिक एंजाइम इंसर्ट किए। सबसे पहले इन्होंने एक एंजाइम इंसर्ट किया दैट इज द प्रोटीएज एंजाइम। तो प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। तो जब प्रोटीएज एंजाइम इंसर्ट किया इसका मतलब माइस के अंदर सारी प्रोटीन डाइजेस्ट हो गई होगी। तो जब प्रोटीएज एंजाइम इंसर्ट किया तो फिर माइस की फिर भी डेथ हो रही थी। इस एक्सपेरिमेंट में कोई भी चेंज नहीं आया, माइस फिर भी क्या हुआ, डाइड हुआ। सेकेंड एंजाइम इन्होंने लिया RNase।
जो आरएनए को क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा। जब आरएनएज लिया तो अभी माइस की डेथ हो रही थी। थर्ड केस में इन्होंने फिर एंजाइम लिया डीएनएज। जैसे ही डीएनएज एंजाइम लिया तो डीएनए को इसने क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया डीएनएज ने, और जैसे ही डीएनएज को डाइजेस्ट कर दिया तो माइस क्या रहा, लाइव रहा, माइस सर्वाइव कर गया। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि डीएनए वह फैक्टर है जो R2 अपना ट्रांसफॉर्म कर देता है S3 में, जिससे कि ये लाइव हो जाता है और माइस की डेथ हो जाती है। क्योंकि जब डीएनए हम इसमें इंसर्ट कर रहे थे तो डीएनए क्या कर रहा था, इसके डीएनए को वो खत्म कर रहा था, किल कर रहा था, जिससे माइस को उसका इफेक्ट नहीं हो रहा था और माइस की डेथ नहीं हो रही थी, सर्वाइव कर रहा था। तो बाय यूजिंग these three enzymes, these three scientists Avery, McLeod and McCarthy has proved that DNA is the genetic material। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने प्रूव किया था कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल होता है। So now what you will have to do, study up to Griffith experiment from the NCERT, then further we will continue later.